students, today we are going to start chapter number 4 of your Democratic Politics book. The title of the chapter is Working of Institutions. So let's see the overview. Democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work with and within institutions. This chapter is about the working of such institution in a democracy. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. In this process, we come across three institutions that play a key role in major decisions: legislature, executive and judiciary. तो बच्चों, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ अपने द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा शासन करना या चुनाव करना भर नहीं है। जो डेमोक्रेसी है उसमें जो शासक होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको भी कुछ नियम कानून, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर हैं, उनको मानना होता है। उन्हें भी कई इंस्टीट्यूशंस के साथ और उनके अंडर में रहकर काम करना होता है। इस चैप्टर में हम इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम यह भी पढ़ेंगे कि किस तरह से महत्वपूर्ण फैसले किए जाते हैं और उन्हें फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से यदि कोई विवाद होता है तो उसको किस तरह से सुलझाया जाता है। इन फैसलों से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उनको किस तरह से सुलझाया जाता है। अब इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तीन इंस्टीट्यूशन है, वो हैं सबसे पहली तो लेजिस्लेचर, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशियरी। तो हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में ध्यान केंद्रित अपना करेंगे। सो नाउ 4.1 हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। सबसे पहला तो ये है कि जो प्रमुख जो मेजर पॉलिसीज होते हैं उनके डिसीजन, उनके फैसले किस तरह से किए जाते हैं। सो लेट्स रीड अ गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 13, 1990 the government of India issued an order. It was called an office memorandum. Like all government orders, it had a number and is known by that OM number 36012/31/90-EST-SCT dated 13/8/1990. The Joint Secretary and Officer is the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions signed the order. It was quite short, barely one page. It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in school. The government issues hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. So children, the subject was in order the 27% reservation for socially and educationally backward classes in civil post and services. This order announced a major policy decision. It said that 27% of the vacancies in civil post and services under the Government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, SEBC. SEBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. The benefit of job reservations was till then available only to scheduled castes and scheduled tribes. Now a new third category called SEBC was introduced. Only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. Others could not compete for these jobs. The children, 13th August 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया और इसे ऑफिशियल मेमोरेंडम कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस आदेश पर भी एक संख्या थी और उस संख्या का नंबर 3612/31/91 था और इसमें जो था
जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनके भी साइन थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था, आप देख सकते हैं, और इसका सब्जेक्ट था 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। तो यदि आप इसे देखेंगे तो यह आपको एक आम सर्कुलर या नोटिस जैसा लगेगा, आपने स्कूल में भी देखे होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बहुत अलग अलग डिफरेंट मैटर्स पर लगभग सैकड़ों आदेश रोज जारी करती है। लेकिन यह आदेश इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यह कई सालों तक विवाद इस पर बना रहा। चलिए देखते हैं निर्णय किस तरह से लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस गवर्नमेंट के आदेश में एक घोषणा की गई कि इसमें भारत सरकार के जितने भी खाली पद होंगे, पोस्ट होंगी, वो और सेवाएं होंगी, उनमें 27% जो है वो सोशल और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं SEBC, उनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा बैकवर्ड मानती रही है, उन्हीं का एक नाम SEBC है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल SC और ST को मिलता रहा, लेकिन अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए जो है 3rd कैटेगरी ये तैयार की जा रही थी, और इसके लिए 27% का अलग से कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इस पोस्ट पर कॉम्पीट नहीं कर सकते थे, उसमें प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। Clearly, such a big decisions could not have been taken by the person who signed that document. The officer was merely implementing the instructions given by the Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions, of which the department was a part. We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. President is the head of the state and is the highest formal authority in the country. Prime Minister is the head of the government and actually exercises all governmental powers. He takes most of the decisions in the cabinet meetings. Parliament consists of the president and 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The Prime Minister must have the support of a majority of Lok Sabha members. तो आप सभी समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने उसमें साइन किए इस मेमोरेंडम में, सिर्फ उसी का ये फैसला नहीं था। इतना बड़ा जो फैसला था वो कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता था। वह मंत्री द्वारा दिए गए जो निर्देश थे उनको लागू करने वाला सिर्फ एक ऑफिसर था। इतने बड़े निर्णय में देश के बहुत प्रमुख जो ऑफिसर्स हैं वो शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षाओं में इनके बारे में कुछ पढ़ा है। अब फिर से एक बार इन पर हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है राष्ट्र का पूरे, और जो औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी वही होता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह गवर्नमेंट का मेन होता है, प्रमुख होता है, हेड होता है, और दरअसल गवर्नमेंट की ओर से जितने भी अधिकार होते हैं उनका इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर ही करता है। जो पार्लियामेंट होती है वो 2 हाउसेस और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका मेंबर, उसका हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर ही जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाकी के मंत्रियों को अपॉइंट करते हैं, और इनसे बनने वाला जो पूरा मंत्रिमंडल होता है उनकी बैठकों में ही जो सारे राजकाज के कार्य होते हैं उनके निर्णय लिए जाते हैं। अब जो पार्लियामेंट होती है उसमें दो सदन होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, लोकसभा और राज्यसभा, जिनमें कि सभी के मत लेकर के निर्णय लिए जाते हैं। दोनों सदनों में डिसीजन होते हैं, दोनों सदनों में उनके लिए डिबेट होती है और फिर उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। अब जो ये फैसला हुआ इसमें रिजर्वेशन का फैसला हुआ, इसमें किस किस ने काम किया बैकवर्ड क्लासेस के लिए? तो सबसे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, फिर पूरी कैबिनेट ने किया, मतलब मंत्रिमंडल ने किया, उसके बाद पूरा प्रेसिडेंट ने किया, और फिर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे उन्होंने किया। अब ये जो कैबिनेट है ये आपका एक लेजिस्लेचर कहला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया या जुडिशियरी कहला गया, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए ये एग्जीक्यूटिव कहला गए।
तो नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस attend the several tasks several arrangements are made in all modern democracies. Such arrangements are called institutions. A democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. The constitution of any country lays down basic rules on the powers and functions of each institution. In the example above, we saw several such institutions at work. The Prime Minister and the Cabinet are institutions that make all important policy decisions. The civil servants working together are responsible for taking steps to implement the minister's decisions. Supreme Court is an institution where disputes between citizens and the government are finally settled. अब मैंने की बताया जो लेजिस्लेचर होते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट होती है, वो ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करते हैं और मंत्रियों द्वारा जो फैसले लिए गए उनको लागू करने में एक जो लोग काम करते हैं वो कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव, जो कि सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय जुडिशरी वह इंस्टीट्यूशन है जहां नागरिकों और सरकार के बीच में कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाया जाता है। इसीलिए इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द पार्लियामेंट।